Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. We'll talk about heat waves, paper 1 geography. Okay, India's got latent. It was in news very much. अब हम कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है वो देखने के बाद हम बात करेंगे एथिक्स की। जीएस पेपर 4 इंटरव्यू से जुड़ा हुआ भी है। अरब लीग पेपर 2 प्रॉब्लमैटिक ग्लोबलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन मीन्स एंड पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ ये मतलब आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल को। क्रोकोडाइल कैटफिश ट्रिलियम्स, सो दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यू विल गेट दैट पिक्चर क्लैरिटी। श्रीराम IAS हैज़ बिन सर्विंग द नेशन सिंस 1985. यू कैन ट्रस्ट द क्वालिटी content, and if you are preparing for 2026, so we have this UPSC foundation course for you in detail. If you want to know about it, you have numbers on your screens. Contact and you will get the complete picture of this course and get yourself enrolled. Everything, current affairs, CSAT, mentorship, guidance and whatnot, even thematic lectures, previous year questions, everything is taken care of. Okay, now talking about crocodile catfish. Recent discovery of crocodile catfish in the Bahani River that is located in Guwahati, near that area. It has raised alarm over the potential ecological disruptions. So we'll talk about it. crocodile catfish, इसको एशियन जाइंट रिवर कैटफिश भी बोला जाता है, जाइंट डेविल कैटफिश भी बोला जाता है। सिसोरिडे फैमिली से बिलोंग करती है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कैटफिश स्पीशीज है एशिया की। बुगेरियस किशिस इसका साइंटिफिक नेम है। फ्रेश वाटर हैबिटेट में ये रहती है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, थाईलैंड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर फ्रेश वाटर में भी रहती है तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में और बात करें तो फ्रेश वाटर में भी इट लीव इन लार्ज रिवर्स एंड डीप पूल्स। ये प्रेफर करते हैं जहाँ पर मॉडरेट करंट हो। दे आर फाउंड नियर रोकी रिवर बेड्स और ग्रेवली रिवर बेड्स, तो वहाँ पर ये रहना पसंद करती हैं। इनकी जो लेंथ है दैट इज अप टू 1.5 मीटर्स, इनका वेट 50 kgs है। वाइड माउथ है, ब्रॉड हेड है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है। Right, its body is typically dark brown or black. It have regular patches or spots on its body and appearance के लिए इतना काफ़ी है। Behavior is very important. आप जब भी किसी species को cover करें make sure behavior ज़रूर देखें क्योंकि behavior UPSC ऐसे सवाल पूछ चुकी है। Now this fish is a powerful hunter that eats other fish and aquatic animals. ठीक है। So it is a carnivorous predator. Voracious appetite, huge appetite. They can swallow the prey almost as big as itself. इतना बड़ा. It prefers to live in deep rivers where it can ambush its prey. IUCN में यह भी near threatened में है. ठीक है. Now before moving ahead, let me tell you, UP Shriram IAS has this great initiative for you. Free of cost. 2 best faculties will have podcast series is this series is podcast series where 2 best faculties will discuss some of the hot burning issues. You can write your answers through that. Whatever they discuss you find important, write it. Create notes of yourself, means it will help you. ठीक है, even in interview also. Now moving to the next article. Before that there are other articles also that faculties are taking. Do subscribe to the channel, get the notification, have a look. They're going to help you out, trust me. Now this article is पढ़ाई होती है यहाँ, चले बाहर जाते हैं, है ना। Studying medicine abroad is common but is largely unnoticed and it lacks proper regulation. देखो इसके बारे में मैं I'll talk about it in detail, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत से पॉइंट्स हम कवर करेंगे। बट देखो आज के टाइम पे देखो एक ना ग्लोबलाइजेशन का तो एरा है ही सही, बट ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ अब थोड़ा डी ग्लोबलाइजेशन वापस से आ रहा है जहाँ पर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज कंट्रीज अपनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस से डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए, इलीगल माइग्रेंट्स वापस भेज दिए हैं। आप
जो लोगों के आने की संख्या होती है लीगली भी, वो भी आप लिमिट करते हैं. देयर आर अदर रीजंस जहाँ पर देश जो है ना वो अब थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट, मतलब अपनी कंट्री फर्स्ट को लेकर चलते हैं, हर कोई लेकर चलता है, बट प्रोटेक्शनिज्म के चलते, डी ग्लोबलाइजेशन के चलते, रादर प्रोटेक्शनिज्म के चलते, इसके देखो हर चीज़ को अगर हम ऐसे देखें ना, ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा. आप उसको पॉजिटिव होके क्यों नहीं देखते? पॉजिटिव एंगल भी है. क्या है पॉजिटिव एंगल? सोचो. जब प्रोटेक्शनिज्म जैसी पॉलिसीज आएंगी तो पहले तो आप ये करोगे ना, हमें किसी पे निर्भर नहीं होना है, सेल्फ रिलायंट होना है, राइट? तो सेल्फ रिलायंस हो रहेगा. दूसरा, जब प्रोटेक्शनिस्ट जैसी पॉलिसीज आएंगी, जब यूएसए जैसी कंट्री को लगेगी कि हम औरों के देश के सिटीजन्स को यहाँ नौकरी ज़्यादा क्यों दें, अपने वालों को देंगे, और इस चीज़ के लिए वो एन पॉलिसीज लेकर आते हैं, तो हमारी भी एक प्रॉब्लम है, ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम. ब्रेन ड्रेन में दिमाग यहाँ का होता है, पढ़ते यहाँ है, बट हम वहाँ चले जाते हैं. देर आर रीजन्स कि चलो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं मिलती, XYZ, बहुत से रीजन्स हैं. बट जब ब्रेन ड्रेन नहीं हो, फिर क्योंकि वहाँ ने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज लगा दी, आपका इंडिया का डॉक्टर अगर उसको यहीं पर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दे दे, वो जाएंगे ही नहीं बाहर. प्रोटेक्शनिज्म से ब्रेन ड्रेन भी रुक रहा है कि नहीं? देर आर पॉजिटिव साइड्स ऑल्सो. Sorted, eh? So in this context of medical education, let's take it into detail. So first of all, when there are articles in UPSC mains जहाँ पर public health से जुड़ा हुआ सवाल आता है, वहाँ पर आप ये चीज़ों को कोट कर सकते हैं. ये पूरा आर्टिकल ये दिखा रहा है कि देखो मेडिकल एडुकेशन जो है ना वो आज के टाइम पे चेंज हो रही है, और वो ऐसी चेंज हो रही है दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड. हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, इवन दो मैनी कंट्रीज इन मेडिकल कहीं पर एंट्री भी रिस्ट्रिक्ट करी हुई है, राइट? बट फिर भी आप देखते हो वैकेंसी कम आई, पोस्ट कम निकली है ना, वो होता है ना एक. सो मेडिकल एडुकेशन, फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन का ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमें पता चला कि 24,000 फॉरेन स्टूडेंट्स मोस्टली फ्रॉम इंडिया वो वहां मेडिसिन पढ़ रहे हैं. क्यों पढ़ रहे हैं? कंसर्न है ना. और डॉक्टर्स की शॉर्टेज भी है यहाँ पर. डिस्पाइट हाउ दे स्टडी मेडिसिन अब्रॉड is a thing, this issue is not being widely recognized. There is a little regulation on it. It is largely unnoticed. It lacks proper regulation. Studying medicine abroad is common. Now the question comes that how does globalization of medical education impacts healthcare? This is a very big question. How the globalization of medical education impacts the quality, the accessibility of the healthcare. First is saying increased access to medical education but quality concerns persist. इंडिया में क्या है? इंडिया में एक मेडिकल सीट होती है और उसके लिए कितने एप्लीकेंट्स होते हैं? 22. हर साल कम से कम 2.3 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो नीट का एग्जाम देते हैं टू गेट इनटू द मेडिकल स्कूल. बिकॉज ऑफ दिस टफ कॉम्पिटिशन बाकी जो बच जाते हैं, लगभग आप लगा लो 20,000 बच्चे, वो क्या करते हैं? वो अब्रॉड चले जाते हैं टू स्टडी मेडिसिन. एक ऑल्टरनेटिव तो मिल जाता है, बट सम कंट्रीज हैव वीक रेगुलेशंस फॉर मेडिकल ट्रेनिंग. मतलब दे नॉट गेटिंग द बेस्ट एजुकेशन. क्वालिटी कंसर्न तो रहता है. फिर लो लाइसेंसिंग एग्जाम पास रेट्स फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, मतलब अब्रॉड से स्टडी कंप्लीट करी, उसके बाद क्या होता है? बच्चे को लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना होता है इफ दे वांट टू प्रैक्टिस. फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इन इंडिया हैज अ वेरी लो पास रेट. मतलब आप लगा लीजिए 20% सिर्फ. 2022 में सिर्फ 25.4% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड. मतलब जो फॉरेन ट्रेन डॉक्टर्स आए, दे फेल टू मीट द नेशनल स्टैंडर्ड्स. दे कैन नॉट वर्क इमीडिएटली नाउ. Disproportionate dependence on foreign trained doctors in some countries. कुछ कंट्रीज डिपेंड करती हैं हेविली ऑन फॉरेन ट्रेन डॉक्टर्स.
यूएस में 25% डॉक्टर्स जो होते हैं दे आर इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स। यूके के अंदर 37% ऑफ द एनएचएस डॉक्टर्स आर फॉरेन ट्रेन। तो जो रिच कंट्रीज हैं दे डील विद द डॉक्टर शॉर्टेजेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट इट ऑल्सो कॉजेज ब्रेन ड्रेन। हमारी जैसी कंट्रीज लाइक इंडिया दे लूज मेनी ऑफ द ट्रेन डॉक्टर्स। Growth for profit medical schools with limited oversight. Caribbean लगा लीजिए, there are over 50 private medical schools जो mainly they teach students from US and Canada. ऐसे schools होते हैं high fees charge करते हैं लेकिन they lack proper hospitals, they lack training facilities. तो poor oversight. Poorer countries में there are shortage of trained doctors in the source countries. WHO estimate करता है कि global shortage जो है that is of 10 million healthcare workers it will be by 2030. अफ्रीका को अकेले it will need 6 million more doctors and nurses. बहुत से डॉक्टर्स जो अब्रॉड स्टडी करते हैं वापस नहीं आते हैं. सो व्हाट इज द फाइनल थॉट? ग्लोबलाइजेशन आसान तो बना देता है बच्चे के लिए कि यू स्टडी मेडिसिन, यू गो अब्रॉड, बट इट डज नॉट ऑलवेज इंश्योर कि क्वालिटी ट्रेनिंग हो रही है वहाँ. सम कंट्रीज जो हैं दे अगर चले जाते हैं दे लूज देयर ट्रेन डॉक्टर्स ऑल्सो. दूसरी दे रिलाई हेविली ऑन फॉरेन ग्रेजुएट्स. सो बेटर रेगुलेशन एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर इज नीडेड. What happens when medical degrees are obtained from the countries with lower academic standard? क्या होता है? एक तो बच्चा लाइसेंसिंग एग्जाम फेल करता है, दे हैव पुअर हैंड ऑन ट्रेनिंग, स्किल गैप रहता है, फिर जॉब मिलना डिफिकल्ट हो जाता है. कॉम्पिटिटिव हेल्थ केयर सिस्टम में हॉस्पिटल्स प्रेफर करते हैं लोकली ट्रेन्ड डॉक्टर्स. मैनी जो फॉरेन ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स होते हैं दे स्ट्रगल टू गेट इंटर्नशिप, रेजिडेंस, परमानेंट जॉब्स इन देयर होम कंट्री. राइट, सो दैट इज द कंसर्न. ठीक है, सो these were some of the points that can help you out in your answers. Okay? Apart from it, अच्छा मूविंग इससे ये इस आर्टिकल पे डिस्कशन से पहले देयर शुड बी अ क्वेश्चन, चीज़ें फिक्स कैसे होनी चाहिए, कैसे ठीक करी जा सकती हैं, व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड. होम कंट्री में अपनी मेडिकल एजुकेशन इंप्रूव करो. इंडिया हैज़ ओपनड सिंस 2019 100 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं. मेडिकल एजुकेशन एक्सेस ज़्यादा होगा. गवर्नमेंट शुड इंश्योर कि हाई क्वालिटी फॉरेन मेडिकल डिग्री एक्सेप्ट करी जाएगी. ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, बायलैटरल एग्रीमेंट्स होने चाहिए फॉर मेडिकल डिग्री. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. महाराष्ट्र की साइबर पुलिस हैव डिनाइड यूट्यूबर समीर रैना's रिक्वेस्ट फॉर मोर टाइम to join the investigation into a case against him, podcaster Ranveer Allabadia and others. The case was filed over an obscene joke made by Allabadia on Raina's show India's Got Latent. India's Got Latent में recent controversy हुई where a podcaster Ranveer Allabadia made some you can say obscene joke, and it was the platform, it was the show of the YouTuber Sameer Raina, and Sameer Raina has requested more time to join the investigation into the case, but cyber police have denied that. In this context, we'll talk about ethical issues that are surrounding this obscenity. First of all, आपके मन में आना चाहिए what is obscene joke. नहीं आया दिमाग में तो फिर कहीं तो गड़बड़ है. obscene joke वो जोक होता है that includes ऑफेंसिव कंटेंट लगा लीजिए, वल्गर और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट जो इट माइट सीन एज इनअप्रोप्रिएट और इमोरल बेस्ड ऑन सोसाइटल नॉर्म्स. अब कैसे डिफाइन होगा? देयर आर सेक्शंस. हाउ इज ऑब्ससिनिटी डिफाइंड लीगली इन इंडिया? देयर आर सेक्शन लाइक 299 है आईपीसी का, 292 है, सॉरी 294 है. देयर आर sections in the IPC. We have this IT Act of 2000 also, उसका section 67 है. Now, why it is controversial? देखो, what is considered obscene वो vary करता है.
वो वेरी करता है बेस्ड ऑन कल्चर, बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीव्स ऑल्सो. कुछ कहते हैं दैट कॉमेडी एंड फ्री स्पीच शुड अलाउ क्रिएटिव एक्सप्रेशन. कुछ ये कहते हैं कि ये जो जोक्स हैं दे कैन बी ऑफेंसिव, दे कैन प्रमोट इंडिसेंसी, इट कैन बी हार्मफुल टू द सोसाइटी. राइट. सो विल टॉक अबाउट कि एथिकल इश्यूज क्या जुड़े हुए हैं दैट आर सराउंडिंग दी ऑब्ससेनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस पब्लिक मोरालिटी. आपके पास राइट है, राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू योर कॉमेडी, थ्रू योर आर्ट, थ्रू योर मीडिया. लेकिन कुछ कंटेंट, कुछ जोक्स ऐसे हो जाते हैं दैट मे ऑफेंड कल्चर, मोरल वैल्यूज एंड रिलीजियस वैल्यूज इन द सोसाइटी. For example, a stand-up comedian making a joke about any religion or a sexual topic may find some people laughing while others may feel deeply hurt or disrespected also. You have to take both of the cases in concern. This is the issues that are surrounding the obscenity. Cultural sensitivities and perception. See, different cultures see obscenity differently. आपके देश में जो ऑफेंसिव है, इट माइट बी कि दूसरी कंट्री में वो एक्सेप्टेबल हो. Some countries might be more open about sexuality and such stuff while others are conservative. Western movies में nudity is seen as artistic. India के अंदर it is censored. There are cultural values. So different cultures have different perceptions. Impact on vulnerable audience, very important. देखो, young people are still learning about the world. So this exposure to this content, it can shape their views on their relationship, on the gender roles, on the behavior. They may develop unrealistic ideas, unhealthy ideas about love, about respect, about consent also. For example, many music videos with such sexualized lyrics and images, they may make teenagers think that certain behaviors are normal and expected in the relationship. That can be the case. Exploitation and objectification. See, what media does, sometimes it uses certain images, especially of the women, to attract the attention and to sell the product. It can lead to harmful stereotype also. People may believe that physical appearance is more important than the personality, than the skill. For example, advertising features like women in such, maybe such you can say advertisements you see na, that use this hyper sexualized images of the women to sell the products. What is it? Objectification. Right? Accountability of content creators and platforms. Influencers, media platforms, they play a very big role in what people watch, what people believe. They must ensure that their content does not cross ethical boundaries. It matters. See, obscene content can offend the people, influence young minds also. It can reinforce harmful stereotypes also. लेकिन too much censorship भी अगर आ जाएगी तो it will restrict creativity, it will restrict free speech. So the challenge is to find a balance जहाँ पर creative expression भी हो and ensure भी ये किया जाए that content does not harm the society. Sorted है? So what you can recommend? That there should be clear legal definitions, there should be clear guidelines, there should be strong content moderation on digital platforms like Instagram hai, YouTube hai. They should work hard to stop such inappropriate or explicit content. Right? जैसे AI का आजकल टाइम पे you see. So you find automatically they can use this technology ना, AI की टेक्नोलॉजी आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं. You find automatically you remove the video that post that break those rules. Public awareness, media से literacy, balanced regulation होना चाहिए, strong accountability होनी चाहिए. You promote ethical digital responsibility also. बहुत से points आ सकते हैं. ठीक है. Moving to the next article, Arab League has strongly rejected US President Donald Trump's proposal for Gaza relocation. And Arab League has called it
अनएक्सेप्टेबल। अरब लीग 1945 में इजिप्ट में 22 मार्च को फाउंड करी गई थी, जिसमें इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया ये सब मेंबर्स हैं। इनका प्राइमरी गोल है अरब स्टेट्स में कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री कोऑपरेशन को प्रमोट करना, मेंबर्स की सॉवरनिटी और इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करना, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के चलते रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें एड्रेस करना। सो द लीग ऑपरेट्स ऑन कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लिए जाते हैं जहां पर सारे मेंबर स्टेट्स एग्री करते हैं ऑन मेजर रेजोल्यूशंस। रेगुलर सबमिट्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, स्पेशलाइज काउंसिल्स हैं, कमेटीज हैं जो फोकस करती हैं ऑन एरियाज लाइक इकोनॉमिक अफेयर्स, डिफेंस, सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन। इसमें 22 मेंबर स्टेट्स हैं टुडे। मेंबर्स ये हैं, ऑब्जर्वर नेशंस में इंडिया एक मेंबर है, ध्यान में रखिएगा। ऑब्जर्वर स्टेटस में जिनका ऑब्जर्वर नेशंस होते हैं दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। ठीक है, अच्छा, मूविंग टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन, हियर विल टॉक अबाउट हीट वेव थ्रेट इन इंडिया। हीट वेव जैसा डिजास्टर इट इज बिकमिंग वेरी डेंजरस। लोगों के हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। डिस्पाइट दिस मेनी पीपल आर स्टिल अनअवेयर। इंडिया हीट वेव्स एक्सपीरियंस कर रहा है मोर देन बिफोर एंड दे आर बिकमिंग मोर इंटेंस नाउ। आप अभी लगा लीजिए, जनवरी का महीना आया, कितनी ठंड पड़ी है सोचो। इन जनवरी 2025 ग्लोबल टेम्परेचर क्रॉस्ड a very worrying milestone. For 18 out of the last 19 months, temperature जो था world wide it were higher than 1.5 degree Celsius pre-industrial levels. Earth is warming. Paris Agreement क्या है? Paris Agreement set a goal कि we have to limit the global temperature rise to 2 degree Celsius by the end of the century. लेकिन इसको अचीव करना बहुत ही हार्ड लग रहा है। हीट वेव्स के इम्पैक्ट क्या होते हैं? इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमने कहा पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है। देयर आर सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज। नाउ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, 90% इंडियंस जो हैं दे आर रिस्क ऑफ गेटिंग सिक बिकॉज ऑफ इट ड्यू टू हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, 34 मिलियन जॉब लॉस हो सकता है बाय 2030, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, पीपल हु वर्क आउटडोर्स, दे लूज द प्रोडक्टिविटी जब इतनी गर्मी होती। वाटर स्कैर्सिटी होगी, वाटर सप्लाई इतना नहीं होगा। इंडिया हैज़ 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, इवन दो इट हैज़ ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। वाटर स्ट्रेस होगा, पावर डिमांड बढ़ेगी क्योंकि सबको फिर एसी चाहिए, ठंडा रहना है, एनर्जी सप्लाई पे प्रेशर आएगा। सो दीज आर द थिंग्स। ठीक है जी, दिस वॉज द होल आर्टिकल। आई होप इट्स क्लियर। एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ signing off. Happy learning, all the best. Thank you.